हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़रा के साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। सर्दियों की एक और खूबसूरत सी शाम, दिन क्योंकि ढल चुका हुआ है और अच्छी खासी सर्दी है। लोग शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। एक साल जा रहा है और अगला साल आ रहा है। हमेशा जब भी हम पुराने साल से नए साल में दाखिल होते हैं तो अपने दोस्तों से उस साल के हवाले से बात ज़रूर करते हैं। पिछले साल में क्या खोया और आने वाले साल के लिए क्या क्या कुछ सोच के और एक्सपेक्ट करके रखा है। पिछले साल में क्या प्लानिंग की थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी और भी बातें जो उनकी ज़िंदगी से, उनके हालात से जुड़ी हुई हैं, उनकी सोच से जुड़ी हैं। हम हमेशा से करते हैं अपने दोस्तों से बड़ा ही प्यारा सा फ़न होता है, बड़ी हेल्दी सी इंगेजमेंट है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से हमारे फ़न को, हमारे ह्यूमर को सॉल्व कर पाते हैं, संभाल पाते हैं, समझ पाते हैं और किस तरीके से नहीं। क्योंकि हम देते हैं हमेशा उन्हें प्यारे प्यारे से क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स ताकि याद रख सकें वो हमारी और अपनी मुलाकात को हमेशा अपने घरों में, अपने दिलों में। तो जनाब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फ़न और उनके साथ प्यारी सी खूबसूरत सी मुलाकातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है बेटे आपका? इंशा। टेल मी योर फुल नेम। इंशा अदनान। इंशा अदनान। कौन सी क्लास में हैं आप? 5th। क्लास 5th। गुड। आज मार्केट में क्या हो रहा है? Shopping. आपने कुछ किया? Yes, I bought a ring and कहाँ है? I put it in my purse. So the ring is in your purse. This mehndi. Yeah. I've got these mehndi tattoos. Okay, show. This is beautiful. Okay, tell me, who is your best friend? Maliha. Why is she your best friend? She's very nice and like we kind You're of. not nice. Yeah, I am nice. Like she matches. Even nicer. Yeah. She matches the vibe. Which sports do you do when you go to school? Volleyball. Why not something else? We also do many other sports: volleyball, football, badminton. But I like volleyball. Yeah, generation, alpha. So what do you play when you have your gadgets in your hand? Gadgets in my hand, I play like Rubik Cube. Most of the time I like to solve What it. is it about? It's very puzzling and you have to use your mind. Like solving puzzles? Yeah, I like solving. Do you play with Rubik's Cube? Yeah, I play. What do you do with that? I don't Ever have been it. succeeded? Yeah, sir, only one time. Only one time. So how long did it take? It take 10 to It would have taken more than, yes, exactly, more than 8-10 hours even. it took so much time. Yeah, yes, but there are a few techniques. If you just watch social media and you find some solutions and you follow some patterns, then you can always make it. Will you try it another time? In my home, whenever I free and I think that I'm fresh to solve it, so yeah. Okay, fine. So, who is your favorite teacher? My favorite teacher is my MSCS teacher. Right. Because she's like very sweet, very kind, and her subject. What's her name? Miss Mehreen. Mehreen. Do you want to say something to Miss Mehreen? You're very. From a song or rhyme, poetry, anything else? Not like, not in words. Not in words. You can sing a song for her. I don't know, a song. Okay, Jolly Jingle, rhyme, anything. You have options. I just want to say she's my favorite teacher. Okay, say that she's your favorite teacher. You're my favorite teacher, and you're very sweet, and I love your subject, and your kind of teaching. And the kind of teaching. Very nice. That's good. अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है, बेटी? बेटी को है। बेटी है आपकी? हाँ, अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं 7 स्टार मेटल इंडस्ट्री है मेरी गुजरांवाला। इंडस्ट्री है। हाँ जी। हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपने पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पर गुजरांवाला से वैसे कब आए आप लोग? लाहौर कब आए? तकरीबन 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले ही। कुछ स्टे करना है, वापस चले जाएंगे? नहीं, इधर अभी जाएंगे फोर्ट स्टेडियम। घुमाना फिराना है? काफ़ी घूमेंगे, फिर इंशाल्लाह 1-2 बजे वापसी है। यानी कि आज रात में ही आप लोगों का वापसी का प्रोग्राम है। कहीं और भी जाएंगे क्योंकि विंटर वेकेशन भी चल रहे हैं। लोगों ने प्लान किया होता है कि अच्छा नॉर्थ में जाएं, कुछ बच्चों को ठंड वंड, कोई बर्फ़ वगैरह दिखाएं। इंशाल्लाह मरी का प्लान है, इस्लामाबाद पिंडी का प्लान है। देखो 4-5 दिन लग जाने हैं उधर भी। मतलब प्लानिंग आपने करके रखी है, बच्चे भी एक्साइटेड हैं? हाँ बिल्कुल। बेहतरीन है। अच्छा मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या क्या देखा है आपने?
पाकिस्तान में बहुत कुछ देखा है किस शहर में गए आप? जी। मैं लाहौर और गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद। बलूचिस्तान सरहद कहीं उधर भी जाना हुआ कभी? इधर नहीं मैं गया, इधर नहीं मैं जा सकता। कैपिटल तक तो आपका जाना आना होता है? हाँ जी, नारायण का गान भी गया हूँ। हाँ चलिए बेहतरीन जनाब, अच्छी बात है कि आपने अब नॉर्थ भी देखा है। ज़्यादातर लोगों ने यही देखा होता है, हार्डली ये होता है कि हम कराची के बारे में सुन लें अपने व्यूअर से, दोस्तों से, लाहौर वालों से कि वो गए हों। बहुत कम सुनने में आता है कि बलूचिस्तान भी कोई गया हो और वहाँ से भी किसी ने कुछ देखा हो। मेरी तो यही कोशिश होती है कि हमेशा अपने पाकिस्तान के बारे में हमारे लाहौर वाले, हमारे लाहौरी, हम सारे बात करने वाले जो दोस्त होते हैं, वो जहाँ जहाँ भी गए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, अपनी सयाहत के हवाले से जो तजुर्बात है उन्होंने ज़िंदगी में देखा है अपनी आँखों से, वो हमारे दोस्तों को भी बताएं। और एक प्यारी सी जो है यहाँ पे छोटी सी एक हमारी दोस्त ननी मुन्नी सी अपनी टीचर के लिए भी एक मैसेज दे दिया। ओके फाइन, एक छोटा सा आप सुनाएंगे गाना? वो देखो भाई, मैं जहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वहाँ इनकी फैमिली से इशारा आया कि आप इनसे सुने, तो मैंने कहा चले जनाब बिहाइंड द कैमरा बात आई है तो फिर इनसे सुनते हैं। बेटा आप उधर हो जाइए, आप सिर्फ इधर आइए, सुनाइएगा। क्या सुनाएंगे? जी, मेहदी हसन का गाना है। मेहदी हसन का गाना सुनाइए जरा। प्यारे बरे दो शर्मीले ले कोई जाने ना मुझको भी तड़पाए, मुझको भी तड़पाए, तुमसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना मुझको भी तड़पाए, मुझको भी तड़पाए। अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है आपकी, क्या मगन हो गए और कितने दिल से सुनाया आपने। अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत सुनाया, बहुत ही खूबसूरत सुनाया। चलिए थोड़ा सा फन करते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है आपको ऐसी गिफ्ट टैम्पर दे दूँ, लेकिन एक हेल्दी इंगेजमेंट होती है क्योंकि हम हमेशा अपने हर दोस्त से करते हैं, तो क्यों ना फिर आपसे भी हो जाए। मुझे बताएंगे आपके एक ऐसा कीड़ा है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं, मीठा खाना? Bees, honey bees. हनी बीज। यस यस, हमारा एक छोटा सा गिफ्ट टैम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। वेलकम बैक। नया साल आ रहा है, पुराना जा रहा है, बड़ा है प्यारा सा खूबसूरत सा एहसास है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बड़ा एनर्जेटिक है और बड़ा ही एक्साइटेड भी है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं और बहुत सारी नई चीज़ों को हम गले लगाने जा रहे हैं। लेट्स सी कि हमारे दोस्तों ने क्या सोच के रखे है। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेयरमैन मतीन अवान जी। अच्छा, क्या करते हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? गुजरांवाला सिटी से। लाहौर में किस तरह से आए आप? और भी हमारा पसंदीदा सिटी है, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आना होता है, और ख़ासकर लिबर्टी मार्केट में। लिबर्टी मार्केट में आने की क्या ऐसी वजह है कि आप इस मार्केट में ज़रूर आते हैं? मैं एक तो कपड़े सीजन में, मैं हर सीज़न में, गर्मी सर्दी कोई, एक तो कपड़े सिलवाता हूँ मैं यहाँ सलीम फैब्रिक से ले के आउटरे से, तो इस हवाले से जूते शूते मिली से दूसरों से आना लाजमी होता है। और वैसे भी आउटिंग के लिए मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी टेंशन जो है ना, गुजरांवाला में बहुत सारी बनी होती है, वो सारी फ्री हो जाती है। सही हो गया कि मतलब एक तरह का आप समझते हैं कि अब एक जिसे कहते हैं कि आपका एक रिफ्रेशमेंट है या थोड़ा सा ज़िंदगी की उन जिम्मेदारियों से एक एस्केप है, थोड़े से वक्त के लिए थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है इंसान या माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो है ना बड़ा टफ सिटी है, वहाँ काम काम काम, बस काम है, कायदे आज़म का फरमान है,
तो यहाँ आके थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए गुजरांवाला रिलैक्सेशन हो, जाहिर है जो लोग यहाँ काम करते हैं उनके लिए वो फ्री टाइम हो सकता है। मैं दावत देता हूँ, आप आएँ गुजरांवाला, देखें क्या गुजरांवाला खाने, और ख़ासकर अच्छा, लोग कहते हैं कि लाहौर के खाने बहुत मशहूर हैं, ऐसा क्यों है? गुजरांवाला के खाने पूरे पाकिस्तान में, गुजरांवाला, बल्कि मैं तो कहूँगा वर्ल्ड में जो देसी खाने वाले लोग हैं ना, वो वही है, गुजरांवाला सिटी है। देसी खानों में गुजरांवाला आप समझते हैं कि सबसे बेहतरीन पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, मैं कहता पूरे पाकिस्तान में। खैर ये भी बड़ी खैर हमने सुना तो है, बात तो बिल्कुल ठीक है कि गुजरांवाला के खाने वाकई उनकी मिठाइयाँ, वहाँ के और भी बहुत सारे पकवान ऐसे हैं। और वो बेकरी है हमारी, तो मिठाई हमारी बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ। आपकी अपनी मिठाई है इसलिए मशहूर है? हाँ, नहीं और की है तो मशहूर नहीं है। नहीं, हम अपने गुजरांवाला के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि आप खाने के शौकीन है, वैसे तो हर इंसान ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का एक वाकई में एक टेस्ट होती है और बड़ी क्रेविंग्स होती है उनके खाने के लिए, कि वो खाने को बड़ी दिलचस्पी और बड़े प्यार और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से लेते हैं और देखते हैं। हमारे गुजरांवाला का ना हर बंदा मजाज है, कोई बंदा शहर का मिजाज। मैं हालांकि डाइटिंग करने वाला बंदा हूँ, मगर उसके बावजूद हफ्ते में एक दिन जो है ना जरूर खाना है। आप ज्यादा मीठे नमकीन से परहेज करते हैं, खाना पोर्शंस में लेते हैं, बेहतरीन है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? मैं एक तो छोटा सा सियासी बंदा हूँ, दूसरा मैं मेरा शनील का बिजनेस है, कपड़ा होता है शनील। कारोबार भी करते हैं और आप सियासत में भी हैं। वैसे कारोबार आपने कब शुरू किया और किस चीज़ का किया? मेरा ख्याल है 30 साल से कर रहा हूँ, मेरी 50 साल के लगभग उम्र है। बहुत ही अर्ली जवानी में ही आपने काम शुरू कर दिया। आपने पढ़ा कितना है मतीन साहब? मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर सका था, तब हमारे यूनियन लेवल पे हालात बड़े ख़राब हो गए थे, तो आपकी फैमिली चाहती थी कि आप पढ़ें? हाँ, आप भी चाहते थे आप पढ़ें? नहीं, मैं नहीं चाहता था। आप नहीं चाहते थे? मैं टॉपर था, मगर नीचे से मैं टॉपर था, नीचे से टॉपर तो ना हो। नहीं, टॉपर ही कह सकते, नीचे से टॉपर भी तो हो सकता है ना। नहीं, टॉपर सिर्फ ऊपर ही होता है, क्योंकि टॉप इसीलिए कहा जाता है, बॉटम और टॉप को इसीलिए नाम दिया गया था, और मैं चाहता था कि बस टॉपर भी रहूं। यानी कि आपको वही करना था जो करना है, वो नहीं करना है कि जो कोई करवाना चाह रहा है। सियासतदान जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। मैं तो चलो सियासतदान नहीं, छोटे लेवल पे हूँ, बहुत छोटे लेवल पे, ऐसे ही होते हैं हम लोग ना। कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा, कुछ शेर सुनाना चाहेंगे, गाना सुनाना चाहेंगे? नहीं, ये तो सुनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। मुझे आता नहीं है ना गुनगुनाना। हर किसी को आता है, हर किसी को आता है गाना भी और सुनाना भी। अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर्द खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये गाना किसने गाया? मुकेश। हाँ, और बात है। मनोज कुमार पे जो सायरा आपने वैसे नहीं गाया फिर? नहीं, मनोज कुमार फिल्म थी, मुझे फिल्म नहीं, मनोज कुमार थे इसके हीरो और सायरा बानो थी इसकी हीरोइन थी। गाया किसने? मुकेश ने। मुकेश ने गाया? श्योर, 100%। चलें ठीक हो गया। अच्छा चलिए आप थोड़ा सा फन करते हैं, लेट्स सी आपको मेरा फन समझ में आता है या नहीं। तो फन मेरा आपसे, मुझे बताएंगे एक ऐसी चीज़ है कि सुबह में वो जीती है, जागती है, पैदा होती है, दोपहर में ढलना शुरू होती है और शाम तक मर जाती है। रोशनी है। वैसे तो रोशनी है, लेकिन एक और जवाब भी था, रोशनी भी सही जवाब। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। प्रोग्राम में छोटे सा मुख्तसर सा वक्फा लूंगी, इस वक्फे के बाद मैं आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाऊंगी, करूंगी उनसे नए साल के हवाले से बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें, गुफ्तगू, उनकी ज़िंदगी की क्या प्लानिंग्स है, क्या सोच के रखा है, जो हमें वो ऑनेस्टली बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाने का वक्त हो गया, ब्रेक गुजर चुकी है। लेट्स सी कि हमारे इस दौरानिए में कौन कौन हमसे मुलाकात करता है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? Saleh. सालिया। No, Saleh. सालेह। सालेह, टेल मी योर फुल नेम। Saleh Chaudhry. सालेह चौधरी। कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। आप पाकिस्तान से हैं, लेकिन आपके एक्सेंट से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर से हैं। England. You're from England. So why are you here in Pakistan for summer vacation? जी, yeah. Oh, these are winter vacations. So for you, are these the winter vacations as well? Yeah. What is the temperature in UK? Where do you live, by the way? I live in Saudi. You live in? Saudi Arabia. You live in
in Saudi Arabia, but you said you're from UK. My dad's job is in Saudi, so like, So you live in Saudi. yeah. That's good. In which class do you read? Class 5. In class 5. Good. That's nice. So what kind of activities do you do all the day when you are at school? So Study. yeah, we have like food, we play sports, and like we also have like nice equipment that we can use. What kind of nice equipments do you use in your classrooms? Like in our classroom, we have like bean bags which you can read on, and we have like a small library with books, and we also have You have all kind of play areas. You must be having a bookshop as well, or a kitchen, and even a dispensary. yeah, All these things. Do you practice them? yeah, You play with your friends. yeah. Who's your favorite teacher? My favorite teacher. She's called Miss Mona. She's really nice. Miss Mona. Yeah. Do you want to say something to Miss Mona? You're a really good teacher Why is she really good? because Kind. yeah, she's kind and she kind of like understands students and like she's not really strict. She's like Do you have strict teachers as well? yeah, Do you want to name anybody who is very strict? maybe like my maths teacher. Okay, why is she strict? She's like sometimes she's like it's like pulling teeth teaching you kids. Like it's really annoying teaching you. Seriously, me? Yeah. Okay. So she screams like an Incredible Hulk as well. Yeah. Oh, yes. Not really. Not really. Then what does she do? She's like always angry. Like She's always angry? she's like You don't like angry teachers? no, not really. She must be disciplined, na? Yeah, maybe. Maybe. So can I talk to you? Come here. Saleh, can you please just stand with your mother? Assalamu alaikum. What's your name? Suleiman. Suleiman, tell me your full name. Suleiman Chaudhry. Suleiman Chaudhry. So, do you go to school? Yeah. In which class? 3. You're in class 3. Who's your best friend? His name is Yusuf. His name is Yusuf. So, do you play games with Yusuf or you play games with Saleh? He's not in my class, so like yeah, I play games. No, he's not. Of course he's not. But he's your brother, na? Yeah. How many siblings? Him and yeah. Saleh? just him. Okay, you're just a one brother. That's nice, that's good. So you play when you are home? Yeah. Which gadgets do you have? Like a tablet, a PS5, and a TV, and like all of the other things. When you come to home, do you do your homework? Or it's already done? Sometimes they give us homework. Sometimes not. They don't. Okay. So you play games as well? Yeah. Virtual games? Yeah. Which one is your favorite one? Name any that you like the most. FC 24. You like solving puzzles as well? Yeah. Which puzzle is your favorite one? I don't actually solve any puzzles. You don't have so many puzzles. Aren't they confusing? Do you play with Rubik's Cube? Sometimes. Sometimes. Do you play with Rubik's Cubes as well, Saleh? Yeah. How many times have you solved that? Maybe like 4 to 5 times. Seriously? Yeah. So how long did it take? Like Hours? 10 minutes. 10 minutes? Oh my god, you're a genius. Assalamu alaikum, what's your name? मैमूना मुना, 2 बच्चे? हाँ जी माशाल्लाह कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से ही है पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात पाकिस्तान से बाहर कब गए आप? हमें 5 साल Saleh, can you please just stand straight better? Okay. हमें 5 साल हो गए हैं बाहर Happy, contented, life is amazing, life is good. पाकिस्तान याद आता है मतलब बाहर पाकिस्तान कितनी बार आना होता है? हम आते हैं साल में 2 बार आते हैं क्योंकि आप क्या समझ साल में 2 बार अच्छी बात है साल में 2 बार आते हैं खैर कई लोग तो 2-2 3-3 साल बाद भी नहीं 5 साल बाद भी नहीं आ सकते हैं इट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक अपने बच्चों को अपने कल्चर से अपने लोगों से अपनी ज़मीन से मुल्क से इंटैक्ट रखना डू यू थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि इनको अपनी रूट्स का पता हो अपने कल्चर का पता हो रिश्तेदारों का पता हो और ये नहीं कि हम बाहर रहते हैं तो हम भूल जाएं अपने मुल्क को तो इनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सब रिश्तेदारों का और ये मिलते रहते हैं साल में ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टच है इनका पाकिस्तान में कहीं और भी लेके जाते हैं ये सिर्फ अपने रिलेटिव्स अपने लाहौर में लेकर बच्चों को घुमाया दिखाया टाइम स्पेंड किया क्वालिटी टाइम स्पेंड किया या कहीं और भी जाते हैं मेरा ससुराल मुल्तान में है और मेरा मैका लाहौर में है तो हम इन दोनों शहरों में ही रहते हैं ससुराल मुल्तान में है और मैका लाहौर में है बट यू आर पंजाबी हाँ मैं पंजाबी हूँ जी किड्स डू यू नो हाउ टू स्पीक सराइकी
Multani? So what do you speak when you go to your grandparents' house in Multan? You speak Urdu? Yeah. Okay, fine. मतलब बच्चों को सराइकी नहीं आती है, समझ भी नहीं आती है? नहीं नहीं, उर्दू ही बोलने तो बड़ी आपको तो आती है, नहीं, मैं भी उर्दू ही बोलती हूँ, उर्दू और पंजाबी समझ में आती है? हाँ हाँ जी जी, समझ में आ आती है. Anything else, guys, that you want to share through camera? Jolly jingle, poem, song? Come, Saleh. Oh yes, come on, come. Okay, both of you can sing, right? Come on. How come you don't know any song? Okay, any poem. स्पेनिश वाली सुना दो. I know the Spanish song. Please go ahead. Okay, come. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Wow. And then it goes something like, I see you in my heart. Okay. But I don't really know it that well. Oh, you really don't know that well. But somehow that was beautiful. I don't know the meaning. Can you please just tell me the meaning? It means like happy winter. Okay. Like, it's like kind of celebrating winter, like you're happy. So are you celebrating winters as well? Not really. Not really. But you're here in Pakistan. You're not celebrating winters. Come on, you are here for the celebration. Yeah. Yes, it is celebration. Yeah. But you are coming and visiting your grandparents and your relatives and your people, your land, isn't it? Yeah, it is. It is, na? Uh-huh. That's how we celebrate winters, and that's how we celebrate our seasons and our time and seasons as well. Good? Okay, now I'm going to have fun. I'm going to ask a question, a very simple question. Let's see who's going to answer me. The little one or the elder one? Okay? Okay. So, tell me, there is something that has no feet, but it is all the time moving. I didn't say walking, I said moving. Slug? A slug? Snake? No, it is not all that. Slug and snake, they cannot move all the time, but it is moving all the time. Time. Yes. Oh yes. हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है. Come. This is for you guys. Okay. Thank you so much. Oh yeah. क्या नाम है आपका? शाहिद अनवर. शाहिद अनवर. ताल्लुक आपका लाहौर शहर से? टोबा टेक्सिंग. टोबा टेक्सिंग से. तो फिर आप लाहौर में रहते हैं या वहीं से बस घूमने फिरने आते हैं, चले जाते हैं? मैं इधर जॉब कर रहा हूँ अकाउंट्स की. आप यहाँ पर कहाँ जॉब कर रहे हैं? जोहो टाउन. जोहो टाउन में. नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि आप किस किस्म की जॉब कर रहे हैं, बताना चाहेंगे? अकाउंट्स की जॉब. जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं यहाँ जी. लाहौर में पक्के ठहर गए हैं और आपने वापस जाना है टोबा टेक से? मैंने अभी सऊदी अरब जाने का प्लान है. आपने यहाँ से भी चले जाना है? यहाँ से भी चले जाना है. यहाँ से भी मूव कर जाना है. अच्छा, सऊदी अरब भी क्यों? अच्छा लगता है मुझे. मेरा पहले फैमिली बैकग्राउंड भी सऊदी अरब से है, तो मैंने सऊदी अरब चले जाना है. आपकी सारी फैमिली सऊदी अरब में? हाँ, पहले थी, अभी आ गए हैं, लेकिन अभी फिर दोबारा जाने का प्लान है. दोबारा जाने का प्लान है. अपने काम ही के सिलसिले में जाएंगे? जी. सही है, ठीक है, हो गया. अच्छा, मुझे ये बताइए, टोबा टेक सिंह के बारे में पूछेंगे कि टोबा टेक सिंह TTS कैसी जगह है, इसकी एक हिस्ट्री है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, इस शहर की तारीख के बारे में क्या जानते हैं? टोबा टेक सिंह एक्चुअल में सिखों का एक शहर है जिसको सिखों ने आबाद किया था. टोबा टेक सिंह कौन था? ये एक सिख था जो कि वहाँ पे मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था. टोबा एक पानी का कुआं था जहाँ से वो पानी पिलाया करता था. उसके बाद इसकी 4 तहसीलें हैं. टोबा, पीरमहल, कमालिया. 4 तहसीलें? जी. टोबा, कमालिया, पीरमहल, गोजरा. पीरमहल और गोजरा. जी. चारों इसकी तहसीलें हैं. जी. बेहतरीन, आप तो बड़ा अच्छा जानते हैं. तो शुरू से ही आप टोबा टेक सिंह में रहे हैं? नहीं, मैं सऊदी अरब के अलावा की बात कर रही हूँ. वो स्पैन कब आया था? सऊदी अरब आप कब गए थे? हमारा फैमिली वीज़ा था वालिद साहब का, तो फिर मैं आता जाता फिर चला जाता था. 1 साल में 1 दफ़ा आ जाता था. फिर आयशा आपकी टोबा टेक सिंह होती थी? नहीं, मैं हॉस्टल में था. पहले मामू के पास स्टडी की, उसके बाद फिर हॉस्टल में, फिर लाहौर. अच्छा, चले. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? उधर टोबा टेक सिंह के अंदर किन्नू के बागात हैं जो मतलब हमारी मेन क्रॉप में है. सरगोदा के बाद जो मेन जो किन्नू वहाँ पे होता है. किन्नू कह रहे हैं कि सरगोदा का मशहूर है. नंबर 2 पे जो है ना वो हमारे इलाके में होता है. नंबर 1 पे किसका है? सरगोदा का. और उसके बाद टोबा टेक सिंह. जी, उसके बाद टोबा. बेहतरीन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की. चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं. तो मुझे ये बताइए कि 11 में
किस तरह से आप 2 को जमा करेंगे कि वो एक बन जाए? 11 में आप किस तरह से 2 जमा करेंगे कि वो एक बन जाए? क्या जवाब है? मुझे नहीं पता। जवाब नहीं पता आपको? नहीं। सुना भी नहीं है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से वक्फे का, और वक्फा जो ही गुजरता है आपको मुलाकात करवाई जाएगी आपके नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। This voice inside of me, I can't seem to rid. No chance of to reach my larynx since it's hid. वेलकम बैक। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी शाम है, और यकीन जानिए वाकई में बहुत ही प्यारी सी शाम है। आइए आपके दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अहमद सलमान। अहमद सलमान आज मार्केट में कैसे आए आप? मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। वो है साल बाद आते हैं, तो एक मौका था लिबर्टी। कौन आया है फैमिली में? कजन्स आए हैं जी। दैट्स नाइस, दैट्स गुड। तो इसका मतलब है कि वेकेशन चल रही है और वेकेशन अच्छे से सेलिब्रेट भी हो रहे हैं जी। और जब लाहौर में विंटर फेस्टिवल भी अभी लास्ट डेज सेलिब्रेट किया गया था, आप गए थे वहाँ पे? नहीं, फ्लावर एग्जीबिशन हुआ था। नहीं देखा आपने कभी भी लाहौर में फ्लावर एग्जीबिशन नहीं देखा? नहीं, लेकिन आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखेंगे जी। चले, गुड। बेटा आपका क्या नाम? मेरा नाम सारा सलमान है। सारा सलमान, ब्यूटीफुल। सारा आप कौन सी क्लास में? बाय द वे यू आर अमेजिंग, यू आर गॉर्जियस। मैं 2 क्लास में। यू इन क्लास 2, गुड। आप कैमरे में आपने ऐसे खड़े होना है, ठीक है, ताकि आप सारे फ्रेंड्स को नजर आए। ओके, टेल मी सारा, यू आर इन क्लास 2। आज मार्केट में आप क्या करने आई हैं? हम अपने कजन्स के साथ आए थे एक थोड़ा, क्योंकि हम हर साल मीट करते हैं। अपने कजन्स के साथ आते हैं आप हर साल इसी मार्केट में? इसी मार्केट में कभी कभी आ जाते इसमें हैं। कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा लगता है ना आना आपको? यस। अच्छा, क्या रीजन है कि आपको इस मार्केट में आना अच्छा लगता है? मार्केट तो लाहौर में और भी बहुत सी हैं। ये फेमस है मार्केट। अच्छा चलो, फेमस तो है, लेकिन फिर भी आपको क्या चीज़ है जो यहाँ पर अच्छी लग रही है? यहाँ के आपको फूड अच्छा लग रहा है, यहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी है, या यहाँ पे जिस तरीके से जिस तरह फैमिलीज आई होती हैं, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, क्या अच्छा लगता है? इधर तो फिलहाल हमने अभी कपड़े और ज्वेलरी। अच्छा, कपड़े ज्वेलरी, यानी कि जो शॉप्स हैं वो अच्छी हैं। यस। अच्छा, आपने यहाँ पर अपने लिए कुछ लिया आज? अभी तक से नहीं। अभी तक नहीं लिया, लेकिन आपने लेना है? हाँ। क्या लेना है आपने? चूड़ियाँ। आई, चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ आपने क्यों लेनी है? किसी की शादी है फैमिली में या वैसे लेनी है? वैसी। दिस इज नाइस। चूड़ियाँ आपको किस कलर की पसंद है? गोल्ड। हाँ, अच्छा, गोल्डन कलर की पसंद है। गोल्ड कलर की पसंद है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम हानिया अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार। हानिया, आप क्या कर रही हैं लाइफ में? मैं बस स्कूल को सरवाइव कर रही हूँ। सरवाइव कर रहे हैं हमारे बच्चा, हमारे अल्फाज स्कूल का सरवाइव कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। वैसे बहुत बड़ा स्टेमिना है, क्योंकि लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़े बड़े बैग्स, इतने सारे असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, और उसके बाद असेसमेंट्स। थम्स अप गाइस, बच्चों की सेहत बता रही है, बाकी सरवाइव कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हफ्सा नाज। हफ्सा, आप क्या कर रही हैं? मैं बस बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ। ज़्यादा पढ़ती हैं? कैसे बुक्स पढ़ती हैं आप? हफ्सा, आप बेटा वहाँ देखें कैमरे में। अब मुझे बताइए कि आप कैसे बुक्स पढ़ती हैं? ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती हूँ। ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट। नॉवेल्स पढ़ती हूँ। नॉवेल्स पढ़ती हैं? कैसे नॉवेल्स आपको पढ़ना पसंद है? मर्डर मिस्ट्री ज़्यादा। मिस्ट्री पसंद है? अच्छा, मर्डर मिस्ट्री क्यों पसंद है? मूवीज भी ऐसी ही पसंद हो? यस। क्योंकि मर्डर मिस्ट्री मूवी देखी है रिसेंटली? मूवीज कम देखती हूँ। कम देखती हैं, बुक ज़्यादा पढ़ती हैं, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसी बताइए बुक भी जो है और उसके बाद वो मूवी भी बना उस पे। टेल मी एनी नेम। A Good Girl's Guide to Murder. What? A Good Girl's Guide to Murder. Good Girls Guide to Murder. Guide to Murder. It became a series just now. It was released a while back. What is it about? About a girl? It's about this girl. She's in high school and she solves a case which was closed by the police, but she solves it because they made the wrong person guilty. Wow, this is amazing. Would you recommend this story to your friends as well? Yes, I have. Read the book or watch the movie? Honestly, the book is better.
इज़ बेटर, समटाइम्स बुक्स आर बेटर, लेकिन क्या होता है हम टाइम सेव करने के चक्कर में कहते हैं कि चलिए चलो इसका मूवी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से हमें पता चल जाएगा. बट एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, जब आप पहले कोई चीज़ देख लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में जो है वो इमेजिनेशन आपकी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी इमेजिनेशन एक ओपन एंडेड तरह की होती है, एंड यू कैन इमेजिन एनीथिंग, यू कैन गो बियॉन्ड इमेजिनेशंस इवन. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? Yeah, Paul, you want to share? I write poetry. Okay, good. It's called Voice. This voice inside of me I can't seem to rid. No chance to reach my larynx since it's hid. Pain has no prospect of leaving my kernel. Life on earth has ultimately become hell. Talk to what when the intellect is unclear? Or talk to someone to who you are not dear? When your void is of no concern, everything you are taught must be unlearned. Some would call it destiny, others fate, but to unresolved lust there is no escape. Wow! To unresolved lust there is no escape. Still a mystery. चलें थोड़ा सा फन करेंगे आपके साथ, ऐसे आपका हमारा फन समझ में आता है या नहीं. मुझे ये बताइए कि घरों में आने वाले कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम पेट्स के तौर पर नहीं रखते हैं, लेकिन वो हमें नजर आते हैं. Insects, like insects at home. Not insects, animals. Give me 2 names. Birds? Animals. I'm talking about animals. I'm not talking about birds. क्योंकि birds में तो फिर बहुत सारे birds हैं जो आपके घरों के छतों पर आते हैं. But you are not keeping them as pets. Squirrels. Squirrels and another name? What else? Easy. Lizards? No, not lizards. आप उसको pets चलें. उसको आप pets के तौर पे भी रखते हैं और pets के तौर पे नहीं भी रखते हैं. Cats. और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा. हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे वो सारे सवाल आपके दोस्तों से किए गए, यानी कि वो सारा खूबसूरत सा प्यारा सा फन जो आज हमने आपके दोस्तों से किया. इस फन में थे हमारे वो दोस्त भी शामिल जो कैमरे के उस पार बैठ के हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस वक्त भी देख रहे हैं. तो जनाब सुनिए एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि 11 में किस तरह से 2 को ऐड करें कि 1 बन जाए. अब 11 में अगर आप 2 को इस तरह से ऐड करें कि वो 1 बन जाए तो घड़ी में 11 के साथ आप 2 ऐड करते हैं. जो ही 11 में आप 2 और शामिल करेंगे तो वो 1 बन जाएगा. सिर्फ घड़ी ही वो जगह है जहाँ पे 11 में 2 ऐड करने से 13 नहीं बल्कि 1 बनता है. एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सा जानवर है जो पैदा होते वक्त अंधा होता है. पैदा होते वक्त अंधा होने वाला जानवर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पैदा होते हुए तो अंधा है और उसके बाद वो फिर देखना शुरू कर देता है. वो जानवर है गुलहरी. एक और सवाल वैसे नायाब हो चुका है ना, ख्याल रखिए, दरख्त लगाइए ताकि ये जानवर फिर से आबाद हो सके. एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को पैदा होती है, दोपहर को बड़ी हो जाती है और शाम के वक्त मर जाती है. और इसके बहुत सारे जवाब हैं. वैसे तो ये दिन की रोशनी भी है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो अखबार भी है. दोनों ही जवाब अब आपके दोस्तों ने जो भी दिया दुरुस्त है. एक आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो क्या था, वो ये है कि वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं. बड़ी अजीब सी बात है. देखिए इंसान जानवरों को भी नहीं छोड़ता है ना. मज़े की बात क्या है, जिस जानवर को इंसान नहीं छोड़ता वो है शहद की मक्खी. वैसे तो इसमें वो भी ऐसे मैमल्स शामिल हो सकते हैं जिनका दूध हम पीते हैं, लेकिन समहाउ जिस जानवर का खाना चुरा कर इस्तेमाल किया जाता है वो है शहद की मक्खी, शहद. आपको याद रहेगा, हमें भी अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम, आज की ये शाम आपके दोस्तों से, अपने दोस्तों से मुलाकात, उनका प्यार, उनकी ज़िंदगी की शेयरिंग्स और केयरिंग्स. जनाब आपका फीडबैक हमेशा के लिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से, और हम सराहते हैं अपने दोस्तों की बातों को, उनके कमेंट्स को, जो गुफ्तगू वो हमसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं कमेंट्स की सूरत में. हेल्दी क्रिटिक्स हमेशा से हम कहते हैं कि किया कीजिए, क्योंकि ये हमें भी इनकरेज करती है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है, ग्रो करने का मौका मिलता है और हमें भी पता चलता है कि हमारे दोस्त आखिर क्या चाह रहे हैं. आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. आप बताइए हम कहाँ पर आपसे मिलने के लिए आएँ. आप आइए और आप हमसे मिलिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, हमें और भी अच्छा लगेगा. आपके प्यार का हमेशा से हम मशकूर हैं. नए साल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं हमारे सारे दोस्तों के लिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आने वाले साल को, आने वाले वक्त को बहुत ही हसीन, बहुत ही आसान और बहुत ही खुशहाल बना दे. इसी प्यारी सी दुआ के साथ ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त. आपसे मैं मिलूंगी अगले शो में. तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार. अल्लाह हाफ़िज़.